said that this program of ensuring continuity of happiness is to understand the harmony and live in harmony at all levels, right? Starting from the self, individual, then family, then society, then neighborhood. So till now we were talking about harmony in the human being. So we had started with harmony in the human being. Right? Then as a part of this we were talking about harmony in the self, the 1A. Then harmony with the body, 1B. With this we can now talk about harmony in the family. When we talk about harmony, you can see that the major issue in the family is that of relationship. Relationship between one human being and another human being. If you remember, we had started with that question. That if you look at it in your family, your unhappiness is more due to lack of physical facility or lack of fulfillment in relationship. So fulfillment in relationship. When we talk about family, the major issue that concerns the family is human relationship. So let us try to understand human relationship. What is the essence of it? How do we fulfill relationship? Okay. How do we ensure mutual happiness in relationship? So if you look at that, there are 4 observations which can be made. अभी तक हम लोगों ने व्यक्ति में व्यवस्था, मानव में व्यवस्था का संगीत का अध्ययन किया था। अभी परिवार में व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं। परिवार में व्यवस्था का अध्ययन करने जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मानव का मानव से जो संबंध है उसका मुद्दा है। तो मानव का मानव से क्या संबंध है उसको समझना है ना, उसका निर्वाह करना, खुद सुखी होना, दूसरे को सुखी करना, ये मुद्दा है। तो उसको अगर देखने जाते हैं तो उसके बारे में कुछ बातें जो हमको समझ में आती हैं, तो 4 मुद्दे हैं जिसको मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला लिखा है संबंध है मैं का मैं से। अभी क्या लगता है, संबंध है मैं का मैं से और शरीर का शरीर से। मैं का मैं से। तो सबसे फंडामेंटल मुद्दा तो ये
अभी हम ऐसा माने रहते हैं कि शरीर का शरीर, क्योंकि अभी अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए रिलेशनशिप को भी शरीर के बेसिस पर देखते हैं. So relationship is between I and I. The second observation is that there are feelings in relationship. So in relationship there are feelings of one I for another I. संबंध में भाव है मैं का मैं के प्रति. फीलिंग्स किसमें होता है? मैं के शरीर में और दूसरे मैं के प्रति. एक बार ये समझ में आ जाए तब ये तीसरा स्टेटमेंट भी समझ में आता है. These feelings are definite. They can be recognized. They are definite. And if you really list them down, there are 9 feelings which are expected, which are there in relationship. इन भावों को पहचाना जा सकता है. ये निश्चित भाव है और ये कुल 9 भाव है. इसके बारे में अभी बात करते हैं है ना. जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, ये सब भाव ही है ना, फीलिंग्स ही है. और ये फीलिंग एक मैं में होती है, दूसरे मैं के प्रति होती है. Their fulfillment leads to mutual happiness. निर्वाह से वह सुख होता है. अगर ये फीलिंग्स को लिस्ट करें विश्वास का भाव
का भाव, ममता, वात्सल्य का भाव। चार स्टेटमेंट हैं रिलेशनशिप के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। ये चार स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसको जांच कीजिए। अगर तैयार टू और देन नॉट। पहला स्टेटमेंट है रिलेशनशिप इज बिटवीन आई एंड आई। सेकंड, देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, वन आई और अनदर आई। These feelings can be recognized, they are definite, they are 9 in number, and these are the 9 feelings that we have listed down. Their fulfillment leads to mutual happiness, leads to my happiness as well as the happiness of the other. So look at these 9 feelings. Find out whether these feelings are accepted in relationship. There is a natural acceptance for these feelings in relationship or not. Feelings are in self, I or body. Whether they are naturally acceptable to me or not. And if I live with these feelings and I fulfill these feelings in relationship, does it lead to my happiness as well as the happiness of the other? Does it lead to mutual happiness? इतना जांच रख करके देख लीजिए। ये जो 9 भाव हैं, इन 9 भावों के साथ मैं जीता हूँ तो मुझे सुख मिलता है कि नहीं? इन 9 भावों के साथ जिनके साथ जीता हूं उसको सुख मिलता है कि नहीं? तो वह सुख होता है कि नहीं? इसको जांच कर देख लीजिए। ये भी जांच कर देख लीजिए कि अगर ये 9 भाव संबंध में सुनिश्चित हो रहे हैं तो इसके अलावा क्या भावों की जरूरत पड़ेगी? अभी जो भी शिकायत होगी आपकी वो इन्हीं भावों को लेकर होगी। उसने मेरे पर विश्वास नहीं किया या मेरा सम्मान नहीं किया या मेरे से द्वेष किया उसने। Sir, affection and love both are similar. सिमिलर है, सेम नहीं है। डिफरेंस क्या उसको भी स्टडी करेंगे। जब अफेक्शन को भी समझेंगे, लव को भी समझेंगे, then we'll see what is the difference and what is the similarity. एक एक को हम संबंधी के रूप में पहचान पाते हैं, उसको स्नेह, उसको अफेक्शन का। हर एक को संबंधी के रूप में पहचान पाते हैं, स्वीकार पाते हैं। अभी तो एक को भी संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं पाते। जबकि चाहते हैं कि हर एक के साथ संबंध पूर्वक
थोड़ी जांच परख करके देखिए ये सभी भाव आपको सहज स्वीकार है कि नहीं। इन भावों के साथ आप रसप्रता में जिएंगे, आपको सुख मिलेगा कि नहीं, दूसरे को सुख मिलेगा कि नहीं। और अगर ये सब भावों के साथ जी रहे हैं, इसके अलावा क्या आवश्यकता है संबंध में। जितना भी आपका रोना धोना है ना संबंध में, तो इसी के अभाव को लेकर है। इतने के अभाव को लेकर रोना धोना है। मेरा विश्वास नहीं किया, मेरे पे मेरा सम्मान नहीं किया। और हमारा बेटा जितना कि नहीं है, इतना भी निकल गया, मैंने तो उसके लिए इतना किया था। ये सब तो जो रिलेशनशिप में हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो सारी इन्हीं भावों से निर्धारित वही ये है ना, तो वही तृप्ति होती है। नहीं है तो उसका अभाव रहता है, उसी का एक्सपेक्टेशन रहता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है अभाव, तो अभाव है उसका, तो आपको लगता है कि कोई सम्मान कर दे, नहीं? अगर कोई सम्मान कर रहा है तो वह तृप्ति होती है ना। सम्मान का भाव आपको करते लगता है, तो नहीं रखता है तो आप आशाएं करते रहते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं कि दूसरा हमारे साथ सम्मान से प्रस्तुत है। नहीं हो रहा है तो क्या करें? नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। नहीं तो हम अपने तरफ से तो करेंगे, हम तो ट्रस्ट करेंगे, हम तो रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन अगला अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है। देखिए जब एक बार हमको समझ में आ जाता है ये बात, तो हमारे लिए भाव सुनिश्चित होने लगता है, ठीक है ना, उसका तृप्ति हमको मिलने लगता है। हम जब भी दूसरे के साथ प्रस्तुत होते हैं तो इन भाव से ही प्रस्तुत होते हैं, इसका सुख उसको भी मिलता है। वो इन भाव से प्रस्तुत होगा या नहीं होगा, ये तो उसकी समझ या समझ के अभाव पे निर्भर करता है। अभी दुखी इसलिए होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है और हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अभी क्या हालत है, हर व्यक्ति सम्मान के लिए है ना बहुत प्रयास में लगा है, सम्मान पाने के लिए, ठीक है ना, और किसी में सम्मान का भाव है नहीं। तो ऐसा हालत हो गया है कि हर आदमी सम्मान की भीख मांग रहा है, हर आदमी का कटोरा खाली है। इसलिए सम्मान जैसी चीज के लिए वे आपको बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, हिमालय में चढ़ना पड़ता है। क्यों चढ़ गए हिमालय में? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। पिछली बार के शिविर में एक सज्जन आए थे, कह रहे मैंने रिकॉर्ड बनाया 80 घंटे तक लगातार टीवी देखने का। मैंने कहा क्या करूं मैं आपका क्या निष्कर्ष निकाले? नहीं, इसी तरह से आप रिकॉर्ड बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है किसी तरह से तो सम्मान मिल जाए। जो इतनी सहज चीज है, समझ में आ जाए तो हर एक में सम्मान का भाव रहता ही है। आप में सम्मान का भाव है तो हर एक के प्रति आप सम्मान पूर्वक प्रस्तुत भी होते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, समझ की जरूरत थी, वो किया नहीं। उसको आप सुविधा से है ना, कंपैरिजन से, ये बहुत सारी तरह से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप बड़े बड़े काम करते हैं। तो कहीं की फीलिंग ऑफ जो पहले कहा था कि वो 80 घंटे टीवी देख के उसने रिकॉर्ड बनाया, तो फीलिंग ऑफ रिकॉग्निशन कहीं नहीं आती है। वही तो सम्मान का ही तो मुद्दा है। रिकॉग्निशन से छोटा साइज है, सम्मान का मतलब एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस है ना। उसके पहले कम से कम रिकॉग्निशन तो हो, कम से कम देखे तो दूसरा मेरे पास। अभी तो देख भी नहीं रहा है, सम्मान करना तो छोड़ दीजिए। तो क्या सर इन पॉइंट्स में रिस्पेक्ट में ही रिकॉग्निशन कवर हो गया कि उसको भी एक हम अपना पॉइंट बना सकते हैं? वही रिस्पेक्ट के पहले रिकॉग्निशन की जरूरत है। अभी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है दूसरे को आदमी, रिस्पेक्ट क्या करेगा, राइट इवैल्यूएशन क्या करेगा?
कुछ आजकल जो कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए नहीं करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज हो, चाहे गलत ही निगेटिव वे में ही रिकॉग्नाइज हो। भाई तो बेसिक कलर तो रिस्पेक्ट के, रिस्पेक्ट के पहले रिकॉग्निशन जरूरी है। तो आपके होने को मैं रिकॉग्नाइज ही न करूँ तो रिस्पेक्ट क्या करूँगा? तो आप कहते हैं कि भैया कम से कम रिकॉग्नाइज तो कर, रिस्पेक्ट भले ना कर। ठीक है, उसके लिए किसी भी तरह से हो रिकॉग्निशन के लिए फिर आदमी काम करते हैं, डालना हो, डॉन बनना हो, बनना बन जाता है। सर इसके लिए कई अलग तरीके भी एक जो एनडीटीवी इमेजिंग पे एक सीरियल आया था राखी का स्वयंवर, तो उसमें जितनी भी मतलब लेडीज थी और जेंट्स भी थे वो सभी के सब बड़ी उत्सुकता से देखा कि राखी इज गोइंग टू मैरी विद क्या नाम था उसका, इलेश। और उसमें लास्ट में केवल पब्लिक का केवल मूड बनाया गया और वो और उसने अपने केवल उसको फेम पाने के लिए उसने सीट जनरेट का सेम थी। और अभी दूसरा जो उसका पार्ट शुरू होने वाला है स्वयंवर 2, उसमें आ रहे हैं दूसरे महाजन साहब, आ चुके हैं, वो आ चुके हैं सॉरी, वो दैट इज आल्सो इन द प्रोसेस। अच्छा, उसको भी देखेंगे। both are the serials are made to get all the recognition. तीसरा भी आने वाला है। इसमें टीवी चैनल्स का भी आगे से राखी का स्वयंवर क्या रहेगा जी। प्लान ये भी है, जो एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। आप उसे समझिए ये सिर्फ राखी का शादी का कोई यही नहीं, राखी से कोई भी शादी कर लेगा। वो पब्लिसिटी और टीवी चैनल्स का बिजनेस करने का एक तरीका है। इस तरह से आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वो बिजनेस का एक तरीका है, एक अलग तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, इतना समझ नहीं। तो कहीं फिर हमको फिर वही चक्र में आना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि सिर्फ उस पे। देखिए अभी क्या करते हैं, टीवी को कहते हैं इडियट बॉक्स। मैं इसलिए लोगों से पूछता रहता हूँ कि इडियट बॉक्स है इडियट्स बॉक्स? अभी क्या है, अपनी मूर्खता को उसके ऊपर लाद रहे हैं। तो बॉक्स क्या, बॉक्स में तो जो दिखाया जा रहा है, जो देख रहा है आदमी वही हो रहा है, देखने वाला और दिखाने वाला। अगर कुछ घंटा पुलटा रहा है तो इडियोटिक हो रही है, तो दिखाने वाला और देखने वाला इनका ही है ना। ये इडियट बॉक्स है कि इडियट्स बॉक्स है, तो भी आप जान लीजिए। सर वो तो बॉक्स दिखाता है, वो तो ऐसी चीजें दिखाता है जो बड़ी काम होती है, पर हम तो वही देखते हैं ना जो बेकार होती है। तो ये जो चार बातें कही है ना, अगर ये चारों चीजें पूरी हो रही है तो उसको न्याय का, जस्टिस का। चारों का पूरा में जरूरी तो आप बताइए चारों का पूरा होना जरूरी है कि नहीं? रिलेशनशिप है इसको पहचानना जरूरी है। मैं इन रिलेशनशिप में भाव है, इन भावों की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन आपका है, इसको पहचानना जरूरी है। वो भाव कौन कौन से हैं उनको ठीक ठीक रिकॉग्नाइज करना जरूरी है और उनको फुलफिल करना जरूरी है, उसी से वह सुख मिलता है। इसलिए चारों इंश्योर होना जरूरी है। चारों इंश्योर होता है तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। इसलिए जब चारों होता है उसको न्याय का है, उसको जस्टिस का है। So if I'm looking for validation, मैंने दूसरे के बैक को पहुँचाना मुझे लगता है, तो कैसे पता चलता है? When I'm able to live through all this? This is one expression. One expression of having recognized the other's self,
the other eye. Next. Having recognized the feeling denied and its expression, sharing. लेकिन पहचाना है का और भी एक्सप्रेशन है ना, जैसे ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको जब भी इवैल्यूएट करने जाता हूँ, आपके सेल्फ के लेवल पर इवैल्यूएट करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अगर ठीक चल रहा है तो आपकी हालत ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ चल रहा है तो आपकी हालत गड़बड़ है ना। फिर आपको मैं शरीर के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर इवैल्यूएट नहीं करता, वो सब एक्सटर्नल है ना। आपका इच्छा विचार आशा का क्या स्थिति है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, उसके आधार पर आपका इवैल्यूएशन करना। अगर मैं आपको ठीक से पहचान पा रहा हूँ, सेल्फ को पहचान पा रहा हूँ, तो एक काम वो करूंगा, एक काम ये भी करूंगा कि मुझे पता है कि अब संबंध में जो अपेक्षा है ना, कोई भावों की अपेक्षा, रिलेशनशिप की अपेक्षा में जो है फीलिंग्स की एक्सपेक्टेशंस, तो मैं इस पर फोकस करूंगा, ना कि फिजिकल फैसिलिटी। इन फीलिंग्स के फुलफिलमेंट के फॉर्म का मतलब प्रोसेस में अगर कहीं फिजिकल फैसिलिटी की भी जरूरत होती है तो वो भी उपलब्ध कराऊंगा, बट द फोकस विल बी इन टर्म्स ऑफ द फीलिंग, नॉट द फिजिकल फैसिलिटी। अब उल्टा हो गया, सेल्फ का पता नहीं है, सेल्फ का जो एक्सपेक्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग उसका पता नहीं है, therefore the fulfillment is not in the terms of feeling but in terms of physical facility। और फिजिकल फैसिलिटी से तो बॉडी का ही नीड फुलफिल हो सकता है, उससे सेल्फ का नीड फुलफिल होता नहीं है। इसलिए क्या होता है, यू कीप कंप्लेनिंग, यू कीप टेलिंग दैट आई हैव डन एनीथिंग दैट आई कुड डू फॉर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड कीप्स फीलिंग दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। आप कहते रहते हैं मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, और बेटा कहता है आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब आपको भी समझ नहीं आता, उसको भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। नहीं, वो ये रहा है कि आप तो फिजिकल फैसिलिटी लगा रहे हैं और उसको लगता है ये फीलिंग्स का पता नहीं है कहीं। आप प्री नर्सरी से जो है बच्चे को स्कूल भेज देते हैं 2 साल की उम्र से, है ना। पहले घर में आप टॉर्चर करते रहते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर टॉर्चर करता रहता है। अब क्या है, बच्चा सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब बच्चे को लगता है कि ये सब लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, हम तो बच्चे का है ना भले के लिए कर रहे हैं, है ना, आगे चल के कमाने खाने लायक हो जाए, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए स्कूल भेज रहे हैं आप। अब वो कमाने खाने लायक जब होता है तब भी उसको लगता है कि ये जो पूरा थ्रू आउट हुआ ना ये सब, तो मैं दुखी हुआ कि सुखी हुआ। आप अपना ही रिकॉर्ड देख लीजिए, हिस्ट्री। देखिए ऐसा मानते हैं अभी, है ना, अभी हम मानते हैं, वही जो मैं बता रहा था ना कल कि 15 मिनट का क्लास है, फिर 5 मिनट का स्पैन, अटेंशन स्पैन होता है। वो 5 मिनट का स्पैन इसलिए होता है क्योंकि आप सार्थक नहीं पढ़ा, सार्थक पढ़ाएं, है ना, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8 घंटे की भी क्लास हो तो कोई बात नहीं। देखिए, at the end of 8 hours also you have lot of questions to ask. अभी 8 घंटे रोज हो रहा है, ज्यादा होता है, सार्थक बात हो रही है इसलिए हो पा रहा है। कमरे के बाहर भी तो होता रहता है। अब तो वही जो बताया ना, रात को सोते समय भी जो है प्रश्नोत्तर चलता रहता है, कुछ इवैल्यूएशन चलता रहता है।
रात को सोते समय भी वही चलता रहता है ना, बोर्ड दिखाई पड़ता रहता है, कैसे काले नहीं है कुछ सब्जेक्ट में बोर होता है, सब्जेक्ट उसमें भी अच्छे से पढ़ाओ, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर उसमें डांटना होता है। बोर है तो पढ़ाते क्यों उसको? साथ में क्या पढ़ाएंगे सर, मैथ से पढ़ाएंगे तो साथ में क्या पढ़ाएंगे? देखिए अभी ये सबको जब शिक्षा संस्कार की बात करेंगे ना, इन इश्यूज पर थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अभी देखिए वो बच्चा जब क्लास 1 में आता है ना, 5 साल का बच्चा, आपका क्या अनुमान है कितने तरह की चीजों को वो पहचानता है, उनका नाम जानता है, उनके नाम का उच्चारण कर सकता है, क्या एस्टिमेट होगा? एक 5 साल का बच्चा क्लास 1 में आया है ना, क्या अनुमान है आपका कितने तरह की चीजों को पहचानता होगा, उनका नाम जानता होगा, उनके नाम का उच्चारण कर सकता होगा? उच्चारण करना एक काम है ना, वो सीखना हुआ, सीखा है उसने, है ना। फोनेटिक्स को सीखना काफी बड़ा काम है। ठीक ठीक उच्चारण करता है वो, कितने शब्द होंगे, कितने वस्तुएं होंगी जिनके बारे में पता अपना इंटरेस्ट होता है तो उसके मतलब क्या अनुमान है? वही मैं पूछ रहा हूँ, अनुमान। अब आप लोग को थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है, टीचर को, है ना। इसको लिस्ट डाउन करिए, 5000 से कम नहीं होगा। किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक, जितने बॉडी के पार्ट्स हैं सबके बारे में पहचानता हो, आंख, नाक, कान, दांत, है ना, सब कितना होगा? 50 तो यही होगा। जिस भी फील्ड में जाइए आपको 50 से समझ जाएंगे, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, सब उसको पता है ना, भारी हल्का। कभी लिस्ट तो करिए बैठ के तो पता चल जाएगा आपको, है ना। पेड़ों का नाम है, कलर, अभी पूछिए कितने साल है, ठीक है ना। अभी होमवर्क करते हैं जरा उसको, कभी आप लोग किसी 5 साल के बच्चे के साथ जो क्लास 1 में जाने वाला है पढ़ने के लिए, उससे बैठ के लिस्ट डाउन करिए। शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट का नाम पता है, ठीक है ना, वो भी पता हो, लेकिन पता तो है। अब आप क्या करते हैं, जब वो बच्चा कॉलेज स्कूल में आता है, आप ये लिखते हैं, ए का पता है नहीं पता है, बी पता है नहीं पता है, कभी पता नहीं। वो 5000 चीजों को पहचानता है, उनके नाम जानता है, उनके नाम का उच्चारण कर सकता है। आप उसको ऑनर नहीं कर रहे, आप अपना एबीसी लेकर बैठे हुए। ए आता है नहीं आता, बी आता है नहीं आता, कुछ नहीं आता है। और लड़के की प्रॉब्लम क्या देखिए, बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है ये है कहाँ अस्तित्व, हाथ है, पांव है, इसलिए उसको पहचानता है वो। ये तो कहीं है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ये है कहीं, आप कहीं से ले आए अच्छा, वो कभी कोरिलेट भी नहीं कर पाता कि ये लोग क्यों इसके पीछे पड़े है ही नहीं। लेकिन ये तो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें देखिए अभी सिस्टम है क्या, हमने बनाया है, ये है क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, बिना सोचे समझे बना दिया होगा। अभी जांच परख करके बना दी, समझ के बना। वो तो बहुत ब्रॉड लेवल पे पूरे देश में लागू है। हम अपने लेवल पे बच्चे को दूसरे तरह से चलाना चाहें, ब्रॉड लेवल पर सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी स्कूल्स में थिंग्स आर टोल्ड इन थ्रू टच एंड सेंसेस। ए है तो ए का इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, उसको टच करके उसको बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप अटके हुए तो यही है कि ये है क्या, कहाँ से आया, हाथ तो जानता है कि हाथ है। क्रिएटिविटी क्लियर हो जाती है, हाँ। वो करेगा ना। वो तो सही बात तो है। लास्ट में आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं एक बार, उसके अलावा कोई उपाय नहीं आपको, है ना। उसको समझता हाँ एक बार ये तो पहले ही बता देता ये क्यों जाए। कैसा होना चाहिए सर, है? होना कैसा चाहिए? देखिए अभी भी अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करें, वो बच्चा वो 5000 वस्तुओं को पहले पहचाना,
ठीक है ना? कहाँ से शुरू हुआ? जो रियलिटी है उससे शुरू हुआ। वो कर ही रहा है, उसको कर क्या है? रियलिटी को पहचाना सबसे पहले। फिर उसका नाम आपने जो बताया उसको याद कर लिया उसने, ठीक है ना? फिर आपने उसका उच्चारण बताया, उसको भी याद कर लिया उसने। ये ज्यादा कठिन काम था कि एबीसीडी सीखना ज्यादा कठिन काम था? वो ज्यादा कठिन काम था। वो कर क्या है? उसको आप ऑनर नहीं कर रहे। यही कह रहा हूँ, आदमी को ठीक से अध्ययन किया नहीं। सर ऑनर कर दिया सर, ठीक है ना? ऑनर कर दिया, लेकिन आप कैसे सिखाना चाहिए? अगर ऑनर कर दिया तो अगर वो इतने फोनेटिक्स याद कर सकता है, ठीक है ना, तो इतने आपसे लेटर्स भी याद कर सकता है। लेटर्स तो इसी होते हैं। वो ज्यादा आसान है। 26 ही तो लेटर है। उसी सिस्टम के थ्रू ऐसे सिखाना। 26 लेटर आप उसको 10 बार लिख के, है ना, सिर्फ लिख दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। Isn't the problem that the child is learning its first letters in a foreign language? I mean, English would not be the language that is spoken at home. And then English is not a phonetic language either. So, and then in these alphabet books you have something like Q for queen. He probably doesn't know what a queen is. That's so very nice. You got your waiting a lot of places. Q for coupé. This problem, I see, yeah. Can't pronounce it, yes. Yeah, so This problem- one should start is the Hindi alphabet or capital, or one should start with one. what I am saying is the problem is the using of letters, whether it is in the mother tongue or in foreign language. That's not really the issue. Okay? Instead of ABCD, if you are talking about OA also, the situation is the same. So basically the introduction of letter is not associated with something that he recognizes in the real world. Yeah. So instead of introducing the letter, right? Use the sound. If you introduce the word, it is name of a reality. And if you write that word 10 times, he will recognize it. Very interesting. I'll show you one page, right? And you can read that whole page. Okay. For example, what is it? Only. Yes, sir. I've got this. Yeah, yeah. The Brain entire is thing sharp is enough. incorrect As- spellings. This page has 200 such words, Yeah. and you can read them all correctly, and all of them are wrongly spelled. All 200 words are wrongly spelled. But if it is put in front of you, you will read all of them correctly. अभी इतना काम कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है। ये जो अपनी कैपेसिटी है ना आपका कल्पनाशीलता का, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है बहुत। इसको ठीक से अगर आप समझेंगे, है ना, आप एक वर्ड को, है ना, 10 बार लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उससे कोई डिफरेंट वर्ड लिखकर वहां रखिए, बच्चा बता देगा ये डिफरेंट, विदाउट नोइंग एनी ऑफ दिस लेटर्स। और उसके लिए गेम है ये, उसके लिए बड़ा अच्छा गेम है। फिर उसमें से आप पूछिए कि इसमें से कौन सा वर्ड एक जैसा दिख रहा है, कौन सा लेटर जो है वर्ड एक जैसा दिख रहा है पहले, फिर इसमें से अगर इसको टुकड़े कर दें तो कौन सा लेटर एक जैसा दिख रहा है वो आपको बता देगा। ठीक, फिर आप बता दीजिए इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो पहले से जानता हो, फोनेटिक्स के बारे में पहले उसको आइडिया है। ऐसा करने जाते हिंदी में रिलेटिवली इजियर है वो, क्योंकि देवनागरी से फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, तो फोनेटिक को अलग से करना पड़ता है, लेटर्स अलग से करना पड़ता है। वर्ड हिंदी में ज्यादा आसान है इसको करना। ठीक है, वो तो वापस उस पर बात करेंगे, शिक्षा संस्कार पर बात करेंगे।